हम हर वीक के टारगेट्स बनाएंगे बुनियाद फेज में, और हर वीक पे कॉल होगा, मतलब विल डिस्कस जितना भी आपका अपडेट वगैरह है। नोट मेकिंग का कैसे रहता है ना, आपने एक बार नोट्स बनाए, फिर आप उनको और रिफाइन करोगे, फिर एक बार और सिलेबस आपने कंप्लीट किया, थर्ड आइटरेशन के बाद जो आपके एकदम रिफाइन नोट्स बन जाते हैं, फिर उसमें से आप जो है और शॉर्ट नोट्स बना के अपना प्रिपेयर करते हो। जितना ज्यादा सिलेबस आपको मेमोराइज होगा ना, उतना आप पढ़ते हुए ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाओगे, कि मतलब जैसे करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये वाला इस टॉपिक से रिलेट हो रहा है ऐसे करके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली मुझे प्रूफ ऑफ वर्क भेजना है, सो POW हम इसको बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, और ये डेली आपको मुझे भेजना है कि आज मैंने मतलब अपना ये टारगेट था ना, वीकली टारगेट से बनाने, तो उसके हिसाब से आपको मुझे कुछ भी आपने फोटो खींच के भेज दिया, जो आपने नोट्स बनाए उसके, या फिर जो लेक्चर किया उसका आपने मुझे बता दिया कि मैंने ये किया, तो आपको उससे चेक रहेगा थोड़ा सा बेसिकली। या हाय, so basically this is an orientation call for you, Arjun. So we'll discuss and know more about you, how your journey has been till now, and how it's going to be further ahead with me as your mentor. And yeah, so that's it. So how, like, what exactly, how many months have you been into the preparation till now? Ma'am, I have been in preparation for last 5 months, Okay, and from the like latest 1 month, I have not done much because of my last college exam. okay. This was my last year of college, so it's been like 5 months, and then 1 month was like a break. I have to give time to college. Okay. So how much portion of the syllabus have you covered with your classes at an academy? And ma'am, I have covered geography, Indian geography, physical, world geography. Only human geography is left, Okay. and in political science, I have covered both the polity and governance. I have not done answer writing in governance, but I have taken the lectures, made notes, and in This history, I was have this was covered. an online course that you joined. Yes, ma'am, I have Okay. joined in online, So and you've completed polity and governance both from the mains perspective as well. yes, ma'am. I Okay. just have to do Great. the answer writing. I don't know where to start. Okay. We'll come to that. We'll come to everything Start about your answer doubts. writing. Oh, your voice is Um, cracking, Aryan. Your voice is cracking. I should remove the Bluetooth. Just am I audible now? Yeah, yeah. Or is it correct? And then I have covered ancient history. Mm-hmm. Uh, Ancient history I have covered, and science and technology I have done like the basics, the basic part of NCRT, and the covered like chapters like biotech, genetics. I have covered Okay. them through lectures. And okay, so these are the four subjects that you've covered, or it is something else too? These are the ones. These are the four subjects. Okay. And have you made any notes from the classes that you've taken? Yes, ma'am, I have made notes. I have made notes. Okay. So I would also like to know how long are these classes going to be for the rest of the subjects? Uh, can I I open mean, the? do you? Yeah, yeah, sure. So Okay. I have completed like 30 lectures from it, but I had to leave it like in between. I mean, it has economy has 55 lessons. So I have covered 20 lessons in economy, and it also has some quizzes, 24 quizzes. Okay. So total 55 lessons and 24 quizzes, that is 79 total length of the course. I have completed till 28, Okay. combining the lesson and quizzes. So Mm-hmm. because the test takes a day easily, ma'am. The So these syllabus are keeps full. on growing. How many questions are there? Ma'am, in some there are 100 questions, and some in them there are 50 questions. Okay, so these So are like full papers only.
ठीक है. So you've done economy, मतलब you are doing economy right now, Yes, and you've done ancient history, yes, ma'am. geography, polity governance, Yes, ma'am. and which one more subject? Uh, these are the ones I have completed, ma'am. So I Polity am left governance, with yes, geography, ma'am. and ancient medieval, and doing with economy, right? And science and tech I have completed. Science, I yeah. completed it way back, science and tech. So I know Okay, all the basics. Just need to revise them. I okay. have So the good you've gone through the syllabus for prelims and mains that we have for the exam. uh, like I have gone through the prelims syllabus mainly. For mains, like the ethics, the GS 4, I don't Mm-hmm. have much idea. And in uh, I have also completed environment, ma'am. I had completed Completed environment, it. Okay, like watched all the lectures. all the lectures, made notes of it as well. But Okay. these were some rough notes. So Mm-hmm. But what I I am have getting told from what, yeah. So what yes, ma'am. you are telling me, so what seems is you've gone through these subjects, so you have a basic idea of the content that each of these subjects hold, right? So you've done NCRTs of these subjects as well. So you told me ancient ka you've done. Ancient I have done NCRT. In Mm-hmm. geography, I have read both 11th and 12th only once. Polity, I have not done any NCRT, just read Lakshmikant and the notes. And for environment, I have only read the notes, class notes, and Mm-hmm. anything I am missing. Street Science, history. science. Science and tech. Science and tech, I have read NCRT because I just gave CDS. CDS, which Okay. took place. So I Okay. had I read much like I cleared the CDS exam, and I also read the notes, class notes of science and tech, like additional chapters, Okay. basic ठीक है, and that's advanced. great. I mean, you have a basic idea of these many subjects, and you've gone through the NCRTs as well. So that's pretty good to start, right? So you've joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. So we are going to handhold you throughout your journey, right? With everything that you require in this exam. So what are you doing with regards to current affairs as of now? Current affair, I'm like it is on and off. So sometimes I Okay. like to watch the lectures only, and but these lectures are 2 hours long per daily lectures. So Okay. completing them with college was a like huge task. Okay. So So basically, current affairs, it's been on and off. You're not regular with on and that. yes, ma'am. I tried to read the newspaper as well as lectures, but Hmm. I didn't get much time. I used to miss the Okay. newspaper. Okay. So you have a habit of reading newspapers from Yes, ma'am. I some time. love reading newspapers. Great, great. So Okay, so we'll start with. So I have a rough idea of how much you are into the preparation right now, and we'll move ahead with that. Okay. So at this in this UAP program that you've enrolled in with us, we'll provide you several components. So we'll talk about all of those components one by one, right? So for current affairs. So current affairs, as you know, as you've gone through the syllabus of the exam also, current affairs is a major portion for the GS papers in mains as well as prelims, right? So we'll be covering current affairs with our program uh, that we have called Samachar Manthan. So this is a weekly booklet for current affairs, mains oriented and prelims both that you get. So it's roughly a 50 to 60 odd pages ka booklet that you get. And this covers your current affairs from Friday to Friday, like Friday this week to Friday next week. And you'll have the classes for this Samachar Manthan notes that you get from on Saturdays and Sundays. Like every Saturday, Sunday, you'll have a class.
in which the teacher discusses the notes that are provided in the Samachar Manthan. Okay, so this document is discussed broadly, and then you have to write a test also. So the UAP program is based on testing, as the name suggests. So we'll test you every week, and it's very good if you, I mean, it's almost mandatory to write these questions for practice every week, right? So we'll keep this on Thursdays probably, that you'll write these tests weekly, and again we'll have a discussion on that. So I'll discuss the answers, the questions every week with you, right? So this is broadly the means Samachar Manthan that we talked about. We also have prelims 20 MCQs every week in this Samachar Manthan. So you'll get weekly 20 MCQs prelims paper as well, practice paper, On current affairs only. current affairs only. Yeah, Samachar Manthan is entirely current affairs, राइट सो इससे आपका करंट अफेयर्स विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना? मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों एक वो मिल रहा है आपको, हैंडबुक मतलब बुकलेट मिल रहा है, उससे आप पढ़ोगे। और फिर उसके 5 क्वेश्चंस हर वीक का आपको मिलेंगे, और आप उस पर प्रैक्टिस करने के लिए लिखोगे, और डिस्कशन भी होगा, क्लास भी होगी एंड मेंटोर डिस्कशन भी होगा। ठीक है, उससे यू विल गेट द नैक ऑफ आंसर राइटिंग इन अ वाइल, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। और 20 एमसीक्यूज जो आपको हम दे रहे हैं, उससे यू विल बी प्रैक्टिसिंग प्रीलिम्स करंट अफेयर्स एज वेल क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट इज वन मेजर कंपोनेंट्स। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव एटॉमिक नोट्स करके मंथली प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स होते हैं वो, जैसे समाचार मंथन का बुकलेट मेंस का मोस्टली रहता है, तो उसी का रिफाइंड एक प्रीलिम्स के लिए हमने बनाया है एटॉमिक नोट्स करके। ये लेकिन आपको मंथली मिलता है, ठीक है। इसमें रफली आपके 25 से 30 पेजेस रहते हैं, और इस ये प्योरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है। मैम ठीक ये है, तो ये भी आपको पढ़ना है। एटॉमिक नोट्स करंट अफेयर्स से। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपको जो बुकलेट मिला है समाचार मंथन में मेंस का, उसी में से जो एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स वगैरह हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इसमें हम मंथली बेसिस पे देते हैं। लेकिन ओके समाचार मंथन वीकली है, एटॉमिक नोट्स मंथली है, तो उससे आपका मंथली प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपका कवर हो रहा है। ओके। ठीक है, हाँ, तो ये आप पढ़ोगे दोनों चीजें, राइट। उसके अलावा न्यूज़पेपर, मतलब जैसे आपको हैबिट भी है, तो वो आप कौन सा न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं? मैम द हिंदू। द हिंदू कर रहे हैं, ग्रेट। ठीक है, आप द हिंदू ही कंटिन्यू करिए। 45 टू मिनट्स टू 1 आवर का आप डेली उसमें रखिए कि आप डेली उससे पढ़ रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया, तो यू वुड नो कि उसमें से अगर कुछ वैल्यू एडिशन के लिए मटेरियल वगैरह जैसे आपने नोट्स बनाए, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स, डेटा फैक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, राइट। वैसे तो वो थोड़ा सा प्रिपरेशन के शुरू करने के बाद होता है, बट आपने थोड़ा कर लिया है, तो आई वुड सजेस्ट आप कर लो अभी से। जब हम वीकली कॉल्स भी करेंगे, तो हम डिस्कस कर लेंगे इस पे कि कैसे करना है। आई गिव यू डिटेल्स अबाउट दैट कि आपको कैसे वैल्यूएडिशन भी करना है, राइट। ओके तो ये हमारा पूरा करंट अफेयर्स का है। सो करंट अफेयर्स हमारा यही रहेगा, इसके थ्रू हम पूरा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। बट ये आपको रिलीजियसली करना है, मतलब आपको टेस्ट वीकली लिखने ही लिखने हैं। मीन्स के जो 5 क्वेश्चन हैं, 20 एमसीक्यूज जो है करने हैं, एटॉमिक नोट्स भी पढ़ने हैं, और समाचार मंथन का जो वीकली बुकलेट आ रहा है वो भी करना है आप। बाकी मैं अपडेट आपसे लेती रहूंगी, तो वो आपको रिलीजियसली करना है, बट ये करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, मैम ठीक है। अगर वो तो मैं शायद बात की क्वेश्चन में द हिंदू से वैल्यू एडिशन करने की नीड शायद पड़ेगी, क्योंकि समाचार मंथन से ही मैं उसको ही ऐड कर लूंगा नोट्स डायरेक्ट। हाँ, मतलब वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, न्यूज़पेपर से जैसे आप पढ़ ही रहे हो, तो कुछ ऐसा मिल जाता है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जो प्रोबेबली नोट्स में उतना रेलिवेंट नहीं था, बट वहां पे हमें मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं उसको। बट उतना अभी उस पर आप नहीं फोकस करो, कोई बात नहीं, वो हम थोड़ा सा बाद में भी देख लेंगे। आप अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में फिर। वरना वैल्यू एडिशन वगैरह मटेरियल आपको यहाँ से भी मिलेगा, जैसे जैसे हम मतलब सिलेबस के और कंपोनेंट्स कवर करते जाएंगे ना, और सब्जेक्ट्स वगैरह, तो आपको मिलेगा वैल्यूडेशन, मतलब वो उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का हो गया। इसके अलावा इसमें हम मेंस, प्रीलिम्स और ऐसे का टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा इस प्रोग्राम में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
टेस्ट सीरीज के बारे में मैं अभी बताती हूँ आपको। उससे पहले ना हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो मेंटोरशिप आपका रहेगा इसमें, उसमें अलग अलग फेजेस से हम सब्जेक्ट्स अपने कवर करेंगे। ठीक है, आप टारगेट कर रहे हो 2025, है ना? तो नेक्स्ट हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक लेस देन 1 ईयर ही है अभी। तो उसमें हम 3 फेजेस हमारे रहेंगे। पहला हमारा रहेगा बुनियाद फेज। ओके। बुनियाद फेज रहेगा, फिर हमारा रैंप अप रहेगा, और फिर बूस्टर फेज रहेगा। ठीक है। हाँ, तो बुनियाद में बेसिकली हम बेसिक्स करते हैं, एनसीईआरटीज करते हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं तो वो हम मतलब उसमें कवर करते हैं। वो रफली आपका मान लो आप 3 मंथ्स के अराउंड बुनियाद वाला रहता है कि बेसिक्स आप कर रहे हो। ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं, एनसीईआरटी से हम शुरू करते हैं। तो जो जो सब्जेक्ट्स वी आर टारगेटिंग, सो 4 कोर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 4 पिलर्स हैं, है ना? तो उसके हम एनसीईआरटीज वगैरह मतलब एक एक सब्जेक्ट हम पिकअप करते हैं, और पहला एनसीईआरटी से शुरू करते हैं बेसिक। फिर उसका हम टेस्ट लगाते हैं। एनसीईआरटी के टेस्ट भी हमने मतलब पोर्टल पे अपलोड हुए हुए हैं आपके, आप वहां से एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही उसका टेस्ट लगाओगे, राइट? एंड देन यू विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड बुक, जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रिस्क्राइब्ड है। फिर उसका भी आप प्रैक्टिस करोगे पोर्टल पे से क्वेश्चंस। फॉर ओके। एग्जांपल अगर हम पॉलिटी उठाते हैं, तो पॉलिटी में एनसीईआरटीज हमने की, ठीक है, 11th 12th वाली। और फिर हमने उसका टेस्ट पेपर लगा लिया पोर्टल से। बहुत मतलब इस तरीके से ही करना है आपको, आपको इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, मतलब एवरीथिंग एड्स अप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होंगे क्वेश्चंस की, उतना आपको अच्छा रहेगा, राइट? तो आप एनसीईआरटीज करोगे, उनके टेस्ट पेपर्स लगाओगे, देन यू विल गो स्टार्ट विद दी लक्ष्मीकांत बुक दैट वी हैव। ठीक है, उसके भी फिर टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पोर्टल से ही। ठीक है। ओके। ये बुनियाद में हमारा इन 4 सब्जेक्ट्स का मेन टारगेट रहेगा, और इसमें हम अपना ये कंप्लीट कर लेंगे एक बार सारा, अलोंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? फिर हम सेकंड फेज आता है रैंप अप। रैंप अप में हम क्या करते हैं कि जो मेंस ओरिएंटेड बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो हम बुनियाद में नहीं फोकस कर पा रहे हैं बिकॉज बेसिक्स पे फोकस रहता है, तो वो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज हो गया GS 1 से, है ना? गवर्नेंस इन GS 2, IR GS 2, GS 3 में सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। बाकी जो मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकली टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं, वो हम रैंप अप फेज में वी ट्राई टू कंप्लीट ऑल ऑफ दैट। तो रैंप अप में आपका मेनली आंसर राइटिंग वैसे आपका शुरू हो जाएगा बुनियाद से ही, लेकिन रैंप अप में हम प्रॉपर मतलब आंसर राइटिंग पे भी फोकस करेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, एंड ऑप्शनल तो आपका साथ साथ रहेगा ही। तो इससे आपका क्या हो रहा है, सारा एथिक्स भी रैंप अप में विल ट्राई टू कंप्लीट। तो इससे आपका पूरा GS का सिलेबस एंड ऑप्शनल साइड बाय साइड आप जो है दिसंबर तक मतलब कर चुके होंगे, एक बार कंप्लीट होके और एक बार और गो थ्रू आप उससे कर लेंगे, राइट? ये आपका रैंप अप हुआ। फिर बूस्टर फेज में क्या होता है, बूस्टर में आपका वैल्यू एडिशन वगैरह, है ना, आंसर राइटिंग, मोर फोकस ऑन दैट, प्रैक्टिस पेपर्स लगाना, वो सब बूस्टर में रहता है। बूस्टर इज लाइक द फाइनल शॉट। उसके बाद आप एकदम प्रिपेयर होके यू सिट फॉर द एग्जाम। ठीक है। ये हमारा वो रहेगा कि इस तरीके से वी आर गोइंग टू गो हेड विद द प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है करंट अफेयर समाचार मंथन वाला पॉइंट को लेके, या ये जो स्टेजेस हमने डिस्कस किए उसको लेके? नहीं मैम, करंट अफेयर्स तो मतलब आ रहा है कि ट्रैक पे हो जाएगा। हम्म। और ऐसे, हाँ, इसमें ये था मैम कि जैसे क्लासेस के हिसाब से वो तो हम देख लेंगे ना कि कितने लेक्चर्स हैं, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। जैसे इसमें मेरा ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया है एंथ्रोपोलॉजी का। ऑप्शनल पे मैं भी आती हूँ, हाँ, इसके बाद विल डिस्कस अबाउट एंथ्रो है आपका, राइट? जी मैम। हाँ जी। तो आपने अभी शुरू नहीं किया मतलब, लेकिन डिसाइडेड है आपका कि एंथ्रो ही करना है आपको? इसमें पहले मैंने हिस्ट्री सोचा था, मैंने हिस्ट्री क्लासेस भी ली कुछ, पर हम्म। वो इतना मतलब बाद में इंटरेस्ट नहीं आया, और फिर मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था हिस्ट्री इतना। तो फिर ओके। मैंने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी 11th 12th में बायोलॉजी था, तो मुझे वो अच्छा लगता है नहीं नहीं, एंथ्रोपोलॉजी। मतलब अगर आपको एंथ्रो ठीक लग रहा है, मतलब एंथ्रो में बायो का भी काफी, बायोलॉजी का काफी रेफरेंसेस है वहां पे। मतलब मेरा तो सोशियोलॉजी है, बट आई नो क्योंकि थोड़ा सिस्टर डिसिप्लिन है, तो एंथ्रो में रहता है बायोलॉजी का काफी इन्फ्लुएंस है उसमें।
तो वो आपको आई थिंक सही रहेगा अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है 11th 12th में। ठीक है, उसका आप एक बार बुक लिस्ट वगैरह मतलब देख के और उसको स्टार्ट कर दीजिए साइड बाय साइड। अभी स्टार्ट कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स के साथ यार। हाँ, अभी आप क्या मतलब अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, है ना? तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज आपने मुझे बोला कि नहीं किया आपने, और आप बस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना क्वेश्चंस जो उनका वो होता है। प्रैक्टिस, हाँ मैं प्रैक्टिस, क्योंकि वो अब वीक में, हर वीक में एग्जाम हो ही जाता है उनका एक। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आई सजेस्ट आप एनसीईआरटीज एक बार कर लो उसकी भी। अब मुझे ये नहीं पता एनसीईआरटी मतलब उसमें कौन सी करनी है, मैक्रो मैं बताती हूँ ना माइनस। आपको, मैं भी माइक्रो नहीं करनी, मैक्रो ही करनी है। ठीक है, हाँ जी, मैक्रो करनी है और फिर उसके पेपर भी आप लगाओगे। 11th 12th की आप कर लो, 11th 12th की कर लो, लेकिन माइक्रो नहीं करनी है उसमें से, ठीक है, मैक्रो वाली करना। और इसके बाद जो हमारे पोर्टल पे जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि पेपर्स हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी कर लेना साथ में। ठीक है। हाँ, और बाकी जो मेन आपका रहेगा वो आप लेक्चर्स कर रहे हो, आप उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, तो वहां से आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। ठीक है। और आई वुड सजेस्ट एक बार आप ना जो जो मतलब पूरा ही सिलेबस देख लो, वैसे थोड़ा उसको एक अपने थोड़ा हैंडी उस पे बना लो, नोट्स टाइप मतलब पेजेस पे। और फिर उसको थोड़ा देखते रहो सिलेबस को। जितना ज्यादा सिलेबस आपको मेमोराइज होगा ना, उतना आप पढ़ते हुए ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाओगे कि मतलब जैसे करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये वाला इस टॉपिक से रिलेट हो रहा है ऐसे करके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस का सिलेबस जो है पूरा लिख लो आप उस पे, पेजेस पे, मैं हैंडी। कर, तो मैं आपको शुरू कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इधर आज ही लगाया वैसे तो। अच्छा, हाँ, ये पूरा ही सिलेबस है, मैंने उसको बस उसके साइज डिक्रीज करके उसको। प्रिंट आपने ले लिया उसका? यस ठीक मैम। है, ये भी ठीक है, बट अगर आपको 1 2 3 4 का अलग अलग बनाना है या ऐसे भी ठीक है, मतलब जैसे भी मतलब आपको बेसिकली वो याद करना है, मेमोराइज होना चाहिए, और आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं उसमें मेंशन्ड है, और मतलब आप रिलेट कर पाओ उनको जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर टॉपिक्स पढ़ रहे हो। ओके। ठीक है, दैट इज द मेन कंसर्न। ठीक है, आप एनसीईआरटीज करोगे इको का, एंड इको के लेक्चर्स अभी कंप्लीट करोगे, और साथ में समाचार मंथन शुरू कर दोगे अभी से। वीक 3 का आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीक 3 से आपको शुरू करना है। ओके। हाँ, ये अभी का आ गया है, वो आप मतलब देख लो, और फिर हम उस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक, मतलब जो कमिंग वीक है उसी में। ओके। मतलब जो टेस्ट पेपर होगा वो भी यू राइट द आंसर्स। मतलब अभी चलो आप बिगिनर हो तो आपने आंसर्स कितना आंसर राइटिंग किया है मीन्स का? मैम ज्यादा नहीं गया है अभी तो, मतलब हिस्ट्री में मैंने किया है और ज्योग्राफी में किया था, फिजिकल ज्योग्राफी। बाकी तो पॉलिटी का नहीं कर पाया अभी तक। कोई बात नहीं, मतलब आपको थोड़ा आइडिया होगा वैसे कि कैसे हाँ लिखना मैम। है, तो हाँ मैंने आप किए हैं काफी और ट्राई भी किया है। पर फिर मैम ये था कि मैं लिख रहा था तो कुछ पेपर चेक करवाने के लिए नहीं था। फिर मैंने सोचा कि एक बार पढ़ लेता हूँ फिर। नहीं नहीं, तो अभी ना आप लिखना शुरू करो, मतलब अभी समाचार मंथन वाले जो हमारे पेपर्स होते हैं वीकली, उससे शुरू करो। फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते जाएंगे ना, फिर हम उनके भी मतलब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, स्टैटिक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं। बट अभी आप समाचार मंथन वाला शुरू करो। ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद मेंस, एसए और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अभी आपको आज सच कोई डाउट नहीं है अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया, मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह को लेके आगे? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इको उठा रहे हैं, मतलब आपका चल ही रहा है इको, उसका आपको एनसीईआरटीज करना है, इको का मतलब लेक्चर्स करने हैं, प्लस ऑप्शनल अपना शुरू करना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए समाचार मंथन करना है। ये 3 चीजें आपको वीकली टारगेट्स में दूंगी। तो कॉल के बाद ना मैं आपको मैसेज कर दूंगी पूरा एक टारगेट बना के कि नेक्स्ट वीक तक आपको इतना इतना करना है। हम हर वीक के टारगेट्स बनाएंगे बुनियाद फेज में, और हर वीक पे कॉल होगा, मतलब विल डिस्कस जितना भी आपका अपडेट वगैरह है। और फिर बाद में इट विल टर्न टू लाइक अ मंथ, कॉल पर मंथ, है ना? ओके या मैम। 15 डेज में एक कॉल। एक डाउट था, जैसे मैंने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं
उनका रिवीजन का अभी कैसे साथ में करूं या फिर और रुक के करूं बाद में इकोनॉमिक्स को? और देखो आप उनका ना, जैसे आप वो करते जाओ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते जाओ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं भी मिल पा रहा है तो आधा एक घंटा। क्योंकि अगर आप, हाँ, उसको मतलब नोट्स वोट्स आपने अच्छे से बना लिए हैं सारे अगर, तो फिर आप उनको रिवाइज करते जाओ। और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, मतलब वैसे तो देखो फर्स्ट आइटरेशन के नोट्स ना, दे नॉट दैट गुड, क्योंकि हम चीजों को समझ रहे होते हैं। फर्स्ट आइटरेशन में आपको उतना आइडिया होता नहीं है चीजों का, तो नोट्स वैसे रिफाइन होंगे अभी आपके, जैसे आप एक बार और पढ़ोगे अपनी बुक्स वगैरह, सेकंड टाइम जब सेकंड आइटरेशन करोगे तब आपके रिफाइन नोट्स बन पाएंगे जो एक्चुअली रेलिवेंट होंगे। तो नोट मेकिंग का कैसे रहता है ना, आपने एक बार नोट्स बनाए, फिर आप उनको और रिफाइन करोगे, फिर एक बार और सिलेबस आपने कंप्लीट किया, थर्ड आइटरेशन के बाद जो आपके एकदम रिफाइंड नोट्स बन जाते हैं, फिर उसमें से आप जो है और शॉर्ट नोट्स बना के अपना प्रिपेयर करते हो। तो वैसे रहता है। तो अभी आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, आप अभी एक बार, हाँ, सेकेंड मतलब उनका रिवीजन शुरू करो, और साइड बाय साइड उनके भी पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो उनके भी। तो मैम ज्योग्राफी से ही कर लेता हूँ स्टार्ट रिवीज। हाँ, अगर आपको ज्योग्राफी आपने बताया जैसे कि पूरा हो गया है, आपने उनके एनसीईआरटीज भी कर लिए, आप एक काम करो ना, सबसे पहले आप मतलब टाइम मैनेज आप इतना हो जाएगा ना, एंथ्रो आप शुरू कर रहे हो, समाचार मंथन वाला कर रहे हो, एंड इको कर रहे हो। लाइक मैम ऑप्शनल में एंथ्रो में 2 आवर्स का लेक्चर होगा, हम्म। इकोनॉमिक्स में भी 2 आवर्स है, और समाचार मंथन का तो आइडिया नहीं है कितना था। समाचार मंथन में आपका जैसे 50 और पेजेस हैं, 50 के करीब पेजेस हैं एक में, तो और यू उसमें रीड अराउंड 8 to 10 पेजेस का एक दिन का टारगेट रखो अपना, 10 डेज में 10 पेजेस एक दिन में। ओके। ठीक है। सो यूल बी एबल टू कंप्लीट दैट इन से 5 डेज, और फिर उसका टेस्ट जो आता है वो आप यूल राइट दैट टेस्ट एंड विल डिस्कस इट पोस्ट योर राइटिंग। ठीक और है, तो इसी आप का एक घंटा इसका मान लो। हम्म जिस दिन टेस्ट लिखोगे उस दिन 1 घंटा और लगेगा, मतलब उसको डिस्कस करने में and आधा घंटा लिखने में, बट वो एक ही दिन का एक्सरसाइज है, सो ज्यादा कंसर्न नहीं है। आप 1 घंटा उसको डेली पढ़ रहे हो। ठीक है। और आप उसी में फिर ये ज्योग्राफी का ऐड कर सकते हो, कि अपना जो 11th 12th का आपने एनसीईआरटी किया है उसके क्वेश्चंस आप लगा लो। उससे आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको लूप होल्स भी पता चल जाएंगे कि अच्छा, मतलब मुझे ये चीजें अभी समझ नहीं आई है शायद, या फिर आई नीड टू रिवाइज दिस। मैम ये समाचार मंथन में एक डाउट है, जैसे कि क्या है, आज सैटरडे है, हाँ जी। तो तो हमारे पास आज से ही पीडीएफ पढ़ने को आती रहेंगी या फिर एक साथ आएंगी वो फ्राइडे को, एक से होगा? समझ नहीं आया थोड़ा सा। वो फ्राइडे टू फ्राइडे होती है ना, तो फ्राइडे या सैटरडे को वो अपलोड हो जाता है, मतलब मैं आई कंफर्म इट वंस, और मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। और सैटरडे को उसकी क्लास भी होती है, फिर आप क्लास भी अटेंड कर सकते हो, डिस्कशन क्लास। तो सैटरडे को क्लास हो, संडे क्लास, सैटरडे संडे हाँ क्लास, जी। फिर उसको रीड करके उसका एग्जाम होता है बाद में? राइट राइट, उसी में से ओके। 5 क्वेश्चंस बनते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं वो 5 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एंड यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चंस। एंड उसका भी फिर मेंटोर के साथ डिस्कशन होता है, सो आई बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स जो आपने लिखे होंगे पोस्ट इट। मंथन की क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती है या फिर हमें लाइव ही लेनी पड़ेगी और रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड भी होंगी। रिकॉर्डेड, हाँ जी। मैम वो मेरे को एक रिकॉर्डेड बार देख लीजिएगा आप। कैसे कहाँ पे देखनी है? मैंने एक ग्रुप तो ज्वाइन किया है समाचार मंथन का, अच्छा। और उसमें मुझे थोड़ा सा टेलीग्राम पे समझ नहीं आया कि इसमें रिकॉर्डेड कहाँ से देखूंगा मैं। ठीक है, नहीं वो अभी ना जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक मेरा भी टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा, तो उसमें भी मतलब मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगी, तो उसमें सारा शेयर होगा जो भी कंटेंट वगैरह है। और जैसे न्यूज़पेपर का भी ना मैं वहां पे भेज दिया करूंगी आपको, कि आज के न्यूज़पेपर में से फॉर एग्जांपल ये वाले टॉपिक्स या आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो वो एक आपको उसका फोटो में भेज दिया करूंगी, तो मतलब वो टेलीग्राम ग्रुप काफी एक्टिव रहेगा, उसमें हम कम्युनिकेशन करते रहेंगे, जो जो टाइमिंग और उसके हिसाब से मतलब रहेगा। ओके, समझ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपको डेली मुझे प्रूफ ऑफ वर्क भेजना है, सो POW हम इसको बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, और ये डेली आपको मुझे भेजना है कि आज मैंने, मतलब अपना ये टारगेट था ना, वीकली टारगेट हम बना रहे, तो उसके हिसाब से आपको मुझे कुछ भी आपने फोटो खींच के भेज दिया जो आपने नोट्स बनाए उसके, या फिर जो लेक्चर किया उसका आपने मुझे बता दिया कि मैंने ये किया, तो आपको उससे चेक रहेगा थोड़ा सा बेसिकली, तो आप डेली मुझे अपना प्रूफ ऑफ वर्क दोगे, मैसेज कर दो। ओके।
ठीक है, ये आपको डेली मतलब करना ही है, और रात को सोते हुए कर दो या जब भी आपको लगे कि मेरा हो गया कंप्लीट, आप मुझे कुछ भी प्रूफ भेज दो कि मैंने ये वाले टारगेट्स अपने आज के कर लिए। ठीक है, सो दैट विल हेल्प बोथ ऑफ अस बेसिकली, है ना। सो ये हो गया आई थिंक मोटा मोटी सारा। पोर्टल का आई लेट यू नो कि आपको लिंक जो भी है वो आई सेंड, और कहाँ से क्या एक्सेस करके ओके। पढ़ना है वो भी आई टेल यू। ठीक है, और अभी तो मैं आपको मैसेज भी कर दूंगी वीकली टारगेट्स जो है आपके अभी कमिंग वीक के लिए। उसके बाद वीकेंड पे मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक वील हैव अ कॉल अगेन एंड डिस्कस जो भी परफॉर्मेंस रहता है आपका, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह है। ठीक है, और अगर पढ़ते हुए कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज मैसेज एंड आस्क। ओके। राइट, ये तो मोटा मोटी हमारा मतलब पूरा हो गया। करंट अफेयर्स और स्टैटिक का हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे करने वाले हैं। राइट, ऑप्शनल का भी आप स्टार्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा साथ साथ, और प्रैक्टिस पेपर्स भी हम लिख रहे हैं, मेंस का वहाँ समाचार मंथन लिख रहे हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो ये होलिस्टिकली सारी चीजें कवर हो रही हैं इसमें, सारे कंपोनेंट्स एग्जाम के जो हमारे मेन है अभी स्टार्टिंग फेजेस के। ठीक है, उसके अलावा मेंस प्रीलिम्स और ऐसे का टेस्ट सीरीज भी है। अ, उसके भी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। तो मेंस में हमारे 30 टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, और ये आपका आई थिंक जून से ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी मई चल रहा है ना, जून से आई थिंक ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके जो सेक्शनल टेस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि जो जो आपके सो द सब्जेक्ट्स यू आर कंप्लीटिंग, एक बार हो जा रहा है आपका सर कोई भी सब्जेक्ट, उसके फिर हम सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि मतलब आंसर राइटिंग पे इम्प्रूवमेंट के लिए, और अपने रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ उसका, और नैक ऑफ आंसर राइटिंग भी आपको उसके साथ साथ आता रहेगा फिर। तो वो हम करेंगे। ठीक है, इसमें 30 टेस्ट होंगे आपके, 8 सेक्शनल होंगे, फिर 10 एडवांस्ड होंगे, और फिर 12 फुल लेंथ होंगे, चारों जीएस पेपर्स के मिला के। ठीक है, और इसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल वगैरह भी मतलब जैसे जैसे हम जब जब ये वाले सेक्शन पे हम आएंगे रैंप अप फेज में, विल प्रोवाइड यू द वैल्यू एडिशन मटेरियल एज वेल। सो आपको किसी भी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है, आप बस जैसे जैसे हम टारगेट सेट करेंगे आप वो करते जाइए, और जो जो डाउट्स आ रहे हैं उनको साथ साथ क्लियर करते जाइए, और साथ साथ मुझे अपडेट देते जाइए कि मेरा ऐसे ऐसे ये चीज हो रहा है, ये चीज नहीं है, आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, तो मतलब उस पर हम विल डिस्कस एंड विल ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। राइट, उसके अलावा एसए में भी ना 10 टेस्ट हैं। 5 हमारे प्रीलिम से पहले होंगे, और 5 जिनका प्रीलिम्स हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उनको 5 हम प्रैक्टिस कराते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। ठीक है, और इसमें फिर मेंटोर डिस्कशन भी होता है, तो जो एसेज आप लिखेंगे विल डिस्कस दोज एसेज एज वेल, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप रहेगा, मार्क्स वगैरह का भी डिस्कस, विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, सो दैट इज अबाउट मेंस। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, ये भी जून से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें 62 टेस्ट पेपर्स रहेंगे आपके, और इसमें भी सेक्शनल वही एडवांस्ड सी सैट भी रहेंगे पेपर्स, और फुल लेंथ भी रहेंगे एक कंप्लीट सिलेबस का। तो ये भी हम साथ साथ अटेम्प्ट करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे कंप्लीट होते जाएंगे टारगेट्स। ठीक है, ये लोग और फिर तो जैन। हाँ जी। टारगेट्स के साथ ही ऐसे हो रखा होगा ना मैम, क्या कहते हैं, जैसे टारगेट्स वैसा एग्जाम होगा कुछ वीक्स में। हाँ हाँ जी, तो जैसे आपने एक सब्जेक्ट किया, फिर आपने उसी का मतलब सेक्शनल मेंस वाला भी लगा लिया, या फिर प्रीलिम्स है तो उसका भी लगा लिया, तो आपका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन साथ साथ होता रहेगा, चेक भी होता रहेगा कि मतलब आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, कहाँ पे आपको लैग कर रहे हो, आप रिविजन में कमी है या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है, जो भी मतलब इश्यूज है वो साइड साथ में हम डील करते रहेंगे उसमें। ओके। ठीक है, ऑल्सो दिस प्रोग्राम कॉल्ड डोमिनेट प्रीलिम्स, जो हमारा जनवरी या फरवरी से होता है। इसमें दिस इज लाइक अ क्रैश कोर्स बेसिकली, कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि उसके बाद उस टाइम से हम प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। वी कंप्लीट आवर मेंस सिलेबस बाय दिसंबर और से मिड जनवरी। ठीक है, तो उसके बाद कंप्लीटली प्रीलिम्स का ही रहता है, मतलब इसमें 15 से 20 क्लासेस होती हैं आपकी, तो ये भी आपका उसमें होगा, तो वो आप तब ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब तब उसको कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट मतलब प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। बस एक चीज का हम ध्यान रखेंगे आर्यन, कि जैसे जैसे हमने टारगेट्स डिसाइड किए हैं उनको हम टाइमली फुलफिल करें, और डेली आप मुझे अपडेट दें
ताकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जितना बेटर रहेगा उतना मैं भी यहाँ पे मतलब ज्यादा फोकस कर पाऊंगी कि क्या क्या लूप होल्स आ रहे हैं, कैसे डील करना है। और आपका भी एक चेक रहेगा, तो प्रिपरेशन स्मूथ चलती रहेगी, है ना? क्योंकि लंबी रेस है, देखो आपको भी पता है, मैराथन है। एक साल के लिए एक कंसिस्टेंसी बना के रखना, डिसिप्लिन बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप डेली मतलब अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस दें मुझे, है ना? और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यू कम्युनिकेट देम टू मी एंड वी डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, और सो दैट इज इट। बाकी बुक लिस्ट वगैरह के लिए जैसे 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 आपने अभी इकोनॉमिक्स का डिस्कस किया, तो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स उठाएंगे वैसे वैसे आई प्रोवाइड यू जो भी सजेस्टेड मटेरियल रहता है कि यही पढ़ना है, ऐसे ऐसे टारगेट्स करने हैं हमारे। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट्स वगैरह हैं या कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप पूछिए, अदरवाइज वी रैप दिस अप। नो नो डाउट। अब अब तो मैं रेडी होना चाहता हूँ स्टार्ट करने के लिए नहीं, प्रिपरेशन। अच्छा है, विल गिव आवर बेस्ट शॉट नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, है ना? मतलब विल ट्राई कि जितना बेस्ट हम डेली का परफॉर्मेंस अपना कर पाए। जो भी इश्यूज आ रहे हैं कम्युनिकेशन से, विल डील विद देम एंड विल गिव आवर बेस्ट शॉट डेफिनेटली। ठीक है, बाकी वीकली हम कॉल्स करते रहेंगे एंड या दैट इज इट। ओके। ठीक है, तो थैंक यू। अभी टेलीग्राम पे अगर जो कोई डाउट पूछना होगा तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं पूछ लूँगा। हाँ, एक ग्रुप बन जाएगा अभी। एक ग्रुप अभी मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट्स का वो एलोकेशन होगा उस हिसाब से विल फॉर्म अ ग्रुप टेलीग्राम पे, और वहां पे ही आप मुझे प्रूफ ऑफ वर्क भी आप अपना भेज सकते हो, या फिर मतलब वैसे डीएम कर सकते हो कि मैंने ये मतलब आज का टारगेट था और ये हो गया ऐसे। और जो हम टेस्ट पेपर्स लिखेंगे वीकली समाचार मंथन वाले, वो भी आप उस ग्रुप पे भेजोगे उनके पिक्चर्स, और वहां से फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब वो ग्रुप इज द मेन कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम कॉल्स दैट वी हैव, Yes. राइट? वो मैं आपको मतलब उसमें ज्वाइन करती, पोर्टल वगैरह का एक्सेस भी आई शेयर देयर। ठीक है, Okay. उसके अलावा इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी जस्ट डीएम, जस्ट मैसेज और कॉल, राइट? ठीक है, Okay. Thank you. थैंक यू आर्यन, थैंक यू।